Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you again to this series of MCQs which are related to the examination of finance account assistant. Here are a few more MCQs on the topic GAP, that is generally accepted accounting principles, known as concepts and conventions of accounting. So, the first question is the accounting principle that assumes a business will remain in operation for a foreseeable future is. वो कौन सा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि वाइल डूइंग अकाउंटिंग वी मस्ट एज्यूम दैट बिजनेस विल रिमेन इन ऑपरेशन। बिजनेस जो है ये अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करेगा फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर। फोर्सेबल फ्यूचर यानी उस फ्यूचर तक जारी रखेगा विच कैन बी फोरसीन, जिसको पहले ही देख सकते हैं। And we assume that business is going to continue its operations for 10 years, for 20 years, for 30 years. We did assume that business is going to shut down its operations. Assume ये करा assume कि business गैस पागा बंद, बल्कि हम ये assume करते हैं कि business will carry on its operations for a long period of time. Why do we assume this? There is a principle responsible for this assumption, and the principle we have to identify is that business entity concept? Is it money measurement concept? Is it going concern concept? Or is it accrual concept? And it is because of this principle that we record our assets and liabilities. We keep record of assets and liabilities. हम अपनी किताबों में books of accounts में assets और liabilities का पूरा record रखते हैं. It is because of this principle. You have to identify the answer. You have to identify the option. And I hope you have selected your answer, and the answer is the option C, that is going concern concept. Going concern concept बताता है कि business is a going concern. Business is going to carry on its operations for a foreseeable future. So option C is the right answer. Now the question number second is the convention of consistency. The convention of consistency dictates that अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या बताता है? दैट फर्स्ट वन इज ऑल बिजनेसेस इन एन इंडस्ट्री मस्ट यूज सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज। Once an accounting method is chosen, it should be used consistently from period to period. Financial statements must be prepared annually. Personal and business transactions must be kept separate. The answer is very easy. Convention of consistency आपको बताना है क्या कहता है. And the answer to this question is, that is the option B, that is once an accounting method is chosen, it should be used consistently from period to period. जो ही हम किसी accounting method को choose करते हैं, use करते हैं, चाहे depreciation का, चाहे stock valuation का, चाहे किसी और का, then it should be continuously used from period to period. Now the question number 3, that is according to which concept are transactions recorded at their original cost and not at their current market value. बिजनेस के प्रिंसिपल्स में वो कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि उनके मार्केट वैल्यू पर, न कि उनके करंट मार्केट वैल्यू पर। यानी अगर हमने कोई एसेट खरीदा है तो हर साल इस एसेट को कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा, न कि उसके मार्केट वैल्यू पर हम रिकॉर्ड करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि मार्केट में उसको उतार लाए, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमने इसको कितने में खरीदा है, डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, और उसी पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, न कि ये देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त इसका कितना वैल्यू है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हमें कहता है? इज इट मैचिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, प्रूडेंस कन्वेंशन और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट? ये सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, एंड द आंसर इज वेरी इजी, that we should record the transactions at their original cost, not at their current market value. This is suggested by the principle, that is option D, historical cost concept. As the name suggests, historical cost concept is that we should record the transactions at their original cost and not at their market value. So option D is the right answer. Now question number 4 is the principle that revenue should be recognized only when it is earned, regardless of when cash is received, is known as the. वो कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें कहता है कि किसी भी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए जब हम उसको कमाते हैं, irrespective of this, regardless of this,
whether cash is received or not, चाहे हमने फिर उसका कैश लिया है, पेमेंट ली है या नहीं ली है, लेकिन फोकस शुड बी ऑन द अर्निंग ऑफ दैट रेवेन्यू, कि हमने रेवेन्यू कमाया हुआ होना चाहिए। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हमें कहता है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड रिगार्डलेस ऑफ इट व्हेन वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। सो इट इज नोन एज विच प्रिंसिपल? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, कॉस्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल और मटेरियलिटी कन्वेंशन। मुझे लगता है बिल्कुल इजी है, एज अ नेम सजेस्ट्स। And the answer to this is, that is the option A, that is revenue recognition principle. यही principle हमें कहता है कि revenue should be recognized when it is earned, regardless of when cash is received or when cash is received or whether it is received or not. तो हमें revenue को रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड करना होता है when it is earned, न कि उस वक्त जब उसका कैश हम लेते हैं। So the option first is that is A, is the right answer. Now question number 5 is, which convention advises accountant to anticipate no profit but provide for all possible losses? वो कौन सा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, वो कौन सी अकाउंटिंग की कन्वेंशन है जो हमें कहता है कि अकाउंटेंट को कोई भी प्रॉफिट पहले ही एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए, कि हमें कोई प्रॉफिट आने वाला है, दिस वी कैन नॉट एंटिसिपेट, दिस वी कैन नॉट रिकॉर्ड, बट वी हैव टू प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। लेकिन किसी भी पॉसिबल लॉस को, जो हमें लगता है कि ये लॉस हो सकती है, उस लॉस के लिए हमें पहले ही we have to provide for that loss, that we have to make provisions for that loss। उस लॉस के लिए हमें पहले ही कोई इंतजाम रखना होता है, लेकिन प्रॉफिट को हम पहले एंटिसिपेट नहीं करते। तो ये कौन सा कन्वेंशन है? क्या ये कंसिस्टेंसी है? क्या ये फुल डिस्क्लोजर है? क्या ये प्रूडेंस है? प्रूडेंस को हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं। क्या ये मटेरियलिटी है? कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, प्रूडेंस, मटेरियलिटी। तो कौन सा कंसेप्ट हमें कहता है कि प्रॉफिट शुड नॉट बी एंटरटेन्ड, रादर वी कैन एंटिसिपेट द लॉसेस? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रूडेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, the concept that requires the separation of business transactions from the personal transactions of the owner is the, वो कौन सा कंसेप्ट है, वो कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें कहता है दैट वी शुड सेपरेट, हमें अलग करना चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजैक्शन से अलग करना चाहिए। और जब हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं तो हमें सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए और बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजैक्शंस को उसमें शामिल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो हमें बताना है वो कौन सा कंसेप्ट है जो हमें कहता है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजैक्शन से बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल सेपरेट करना चाहिए। एंड द आंसर इज वेरी इजी। The answer is the option C, that is business entity concept। business entity concept ही वो principle है, वो concept है जो हमें कहता है that business is separate and businessman is separate। We should separate business transactions from the personal transactions of the owner। So option C is the correct answer। Now question number 7 is, the rule that expenses incurred to earn revenue must be recorded in the same period as the revenue is the essence of the, वो कौन सा कंसेप्ट है जो हमें कहता है that expense incurred to earn the revenue must be recorded in the same period, यानी जो हमने खर्चा किया है किसी रेवेन्यू को कमाने के लिए, तो उस रेवेन्यू और उस खर्चे को एक ही पीरियड में हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी युस खर्चा आस लगोमुत आस कह इनकम कमावन खतर, तो सो इनकम तो सो एक्सपेंस गए एकसी पीरियडस मज रिकॉर्ड करने, दोनों को एक ही पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए। उस एक्सपेंस को भी जो हमने उस रेवेन्यू को कमाने के लिए मतलब खर्च किया, और उस रेवेन्यू को भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल है? एज देयर इज द एसेंस ऑफ द एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट। It is easy, not so difficult. And the answer to this question is the option B. The option B is matching concept.
मैचिंग कंसेप्ट हमें कहता है कि जिन खर्चों को आपने लगाया है जिस इनकम को कमाने के लिए, उन दोनों को हमें आपस में मैच करना चाहिए, उन दोनों को एक ही पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए और उन दोनों को ही फिर आपस में मैच करके फिर उस साल का, उस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट निकालना चाहिए. सो मैचिंग कंसेप्ट इज द आंसर to question number 7, that is the expense incurred to earn the revenue must be recorded in the same period as the revenue. So this is the answer. The option B is the answer. Now question number 8 is, which convention allows an accountant to ignore a standard accounting principle if the amount is insignificant to the users? वो कौन सा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है जो अकाउंटेंट को बताता है कि आप एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल को इग्नोर कर सकते हो इफ द अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट? अगर अमाउंट जो है, द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी लिटिल, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है नॉट सो इंपॉर्टेंट, एंड वेरी लिटिल अमाउंट इज इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजैक्शन, देन वी कैन इग्नोर इट. यानी जिस ट्रांजैक्शन में, जिस इवेंट में अमाउंट जो इन्वॉल्व होता है विच इज इनसिग्निफिकेंट, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, and that amount, that transaction, that time can be ignored. उस ट्रांजैक्शन को, उस अमाउंट को हम इग्नोर कर सकते हैं. वो कौन सा प्रिंसिपल है? इज दैट प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, मेटीरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर? प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, मेटीरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर. इनसिग्निफिकेंट जहां पर अमाउंट इन्वॉल्व होता है ट्रांजैक्शन में, तो उस वक्त उस ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर कर सकते हैं. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, दैट इज द ऑप्शन सी, दैट इज मेटीरियलिटी. Materiality is the right answer for the option. Materiality is the right answer for the above question, because materiality principle suggests that only material transactions should be considered. Immaterial and unimportant or insignificant the transactions should be ignored, should not be recorded. So this principle, that is the materiality principle, suggests that only important and material transactions should be considered for recording. Now the question number 9 is, that is the dual aspect concept, which states that every transaction has two equal and opposite effects, is the foundation for. यानी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एक प्रिंसिपल है जो हमें कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इक्वल और अपोजिट इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, यू नो दैट, इज द फाउंडेशन फॉर. ये किसकी फाउंडेशन है? सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग. डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल जो है ये किस अकाउंटिंग सिस्टम की बुनियाद है? क्या ये सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इसकी बुनियाद है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, या डबल एंट्री बुक कीपिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग की? एंड द आंसर इज वेरी इजी, दैट इज द ऑप्शन सी, दैट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग. सो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है ये हमें कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं और वो दोनों एक तो इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, और उन्हीं को हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं. एंड दिस dual aspect concept is the foundation for the double entry system of bookkeeping. Now the question number 10, that is the accounting period concept divides the indefinite life of business into specific time intervals such as quarters or years for reporting purpose. This is also called the, यानी वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो है ये एक बिजनेस की इनफाइनाइट, बिजनेस की जो लाइफ होती है, इनडेफिनिट लाइफ जो होती है बिजनेस, बिकॉज वी डोंट नो व्हेन द बिजनेस विल शट डाउन. हम ये नहीं जानते कि बिजनेस कब बंद होगा. तो बिजनेस की लाइफ जो होती है ये होती है इनफाइनाइट, इनडेफिनिट होती है. लेकिन वो कौन सा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है जो बिजनेस की इस इनडेफिनिट लाइफ को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करता है, अलग अलग टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करता है, क्वार्टर्स में या ईयर्स में डिवाइड करता है, और फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, ताकि हम उस क्वार्टर का, उस सेमी ईयर का या पूरे साल का रिजल्ट जो हमें हम एसरटेन कर सके, पता लगा सके, या हम रिपोर्ट कर सके टू अकाउंटिंग यूजर्स को. तो ये कौन सा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है? इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? दिस आल्सो कॉल्ड एज टाइम पीरियड कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट या रियलाइजेशन कंसेप्ट. इट्स वेरी इजी.
बिजनेस की इंडेफिनिट लाइफ को अलग अलग हिस्सों में टाइम इंटरवल्स में हम डिवाइड करते हैं और उसी इंटरवल का फिर रिजल्ट निकाल के हम उसको रिपोर्ट करते हैं। ये कौन सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? हालांकि ऐसे तो हम उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, लेकिन इस अकाउंटिंग पीरियड को हम और क्या बोलते हैं? This is also known as, the answer is option A, that is time period concept. इसको periodicity भी कहते हैं, periodicity भी कहते हैं और time period concept भी बोलते हैं. So time period concept, that is the option A, is the right answer for the above question, according to which the indefinite life of the business is divided into the time intervals such as in quarters or in 6 monthly intervals or in a year. So option is the right answer. Now question number 11 is, according to which concept should all the relevant financial information be fully disclosed in the financial statement? वो कौन सा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है जो हमें कहता है कि एक साल की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग यूजर्स को डिस्क्लोज करनी चाहिए? वी शुड नॉट हाइड information from the accounting users. We should disclose all the relevant and material information should be disclosed to the accounting users for a particular of a particular period. तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? क्या वो कंसिस्टेंसी है, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन है, मेटीरियलिटी है, या बिजनेस एंटिटी है? You can choose from the options given, and the correct answer for this question is, that is the option B, that is full disclosure convention. So this concept suggests that all the relevant information should be fully disclosed. Now the question number 12 is, the principle that only transactions and events that can be measured in monetary terms are recorded in the books is the, वो कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें कहता है कि सिर्फ उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मनी में मेजर किया जाता है? Only those business transactions can be recorded or recorded in the books of accounts which can be measured in terms of money. तो वो कौन सा कंसेप्ट है? क्या वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है? It is easy, I think, not difficult at all. And the answer is option A, that is money measurement concept. Money measurement concept suggests us and dictates us that only those business transactions are recorded in the books of accounts which can be measured in terms of money. That is non-monetary transactions are not recorded in the books of accounts. That those are also called as qualitative transactions. So it is only those transactions which can be measured in terms of money are recorded. Now question number 13, that is the underlying assumption that allows for the deferral of prepaid expenses to future period is the, ये वो कौन सी assumption है, वो कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें कहता है कि अगर आपने कोई खर्चा दिया है, यानी खर्चा पे किया है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है जो खर्चा आपने पहले ही पे किया है लेकिन उस खर्चे को आपने डेफर करना है, that you have not show in the year in which it is paid. अगर आपने कोई खर्चा पे किया है लेकिन उस साल का वो खर्चा नहीं है, दैट इज प्रीपेड, वो आपने एडवांस में दिया है, यानी आपने रेंट दी है 2025 की रेंट, 2025 में आपने 2026 की रेंट दी है, 2025 में आपने 2026 की रेंट दी है, तो इस रेंट को हम कहेंगे प्रीपेड रेंट। लेकिन हमें एक प्रिंसिपल कहता है कि दैट यू हैव टू डेफर दिस एक्सपेंस, इस एक्सपेंस को आपने 2025 में एज एक्सपेंस नहीं दिखाना है, रिकॉर्ड तो करना है लेकिन एज एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना है, बल्कि हमें इसको डेफर करना है, अगले पीरियड 2026 तक इसको हमें डेफर करना है, पोस्टपोन करना है। ये कौन सा प्रिंसिपल है? व्हाई वी आर डूइंग इट? सिंस वी हैव पेड द अमाउंट, कैश तो हमने दिया है, खर्च तो हमने किया है, लेकिन वी हैव पेड दिस इन एडवांस एंड वी हैव टू पोस्टपोन इट फॉर रिकॉर्डिंग। विच इज द प्रिंसिपल रेस्पॉन्स फॉर दिस? इज इट मैचिंग कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, prudence convention, or realization concept? So you have to choose your answer from matching concept, cost concept, prudence convention, or realization concept. Actually, we have already discussed this.
And the correct answer for this is that it's matching concept, because prepaid expense is not the expense of the year in which it is actually paid. तो जिस साल में प्रीपेड एक्सपेंस यानी खर्चा दिया गया है, इस साल का खर्चा नहीं है, ये अगले साल का खर्चा होता है जो हमने एडवांस में ही दिया होता है. सो मैचिंग कंसेप्ट, सो इसको इस साल की इनकम के साथ मैच नहीं किया जा सकता है. सो इट इज अ मैचिंग कंसेप्ट which is the right answer for question number 13. Now the question number 14 is, a company chooses to write down its inventory to market value even though it hasn't been sold yet, based on the expectation that its value has fallen. This follows the convention of, एक कंपनी चूज करती है कि जो उसकी इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है वो चीजें विच आर येट नॉट सोल्ड, अनसोल्ड गुड्स. और अनसोल्ड गुड्स की जब वैल्यूएशन होती है तो उनकी वैल्यूएशन होती है मार्केट वैल्यू से कम, मार्केट वैल्यू से कम उनको वैल्यूएट किया जाता है, बिकॉज वी एक्सपेक्ट दैट द वैल्यू ऑफ द गुड्स हैज फॉलन. व्हाई डू वी डू दिस? हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम अपने स्टॉक को की वैल्यूएशन लेस कॉस्ट पे करते हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? व्हाट इज द प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक? दैट इज द रिटन डाउन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टू मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू से हमेशा हम अपने स्टॉक का वैल्यू जो है कम रखते हैं. क्यों रखते हैं ऐसा? विच इज द प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल? इज इट कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, प्रूडेंस और फुल डिस्क्लोजर? क्योंकि हमने चीजें अभी बेची नहीं है, वी डोंट नो कि जो चीजें हम बेचेंगे इनका मार्केट में ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, ये तो हमें पता नहीं है. लेकिन हम हमेशा जो चीजें अनसोल्ड होती है उनको हम कम वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं व्हाइल डूइंग स्टॉक वैल्यूएशन. हम ऐसा क्यों करते हैं? विच द प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, प्रूडेंस, फुल डिस्क्लोजर. एंड द आंसर टू दिस इज द ऑप्शन सी, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस. प्रूडेंस को हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं. और ये कंसेप्ट, ये प्रूडेंस हमें कहता है, जो हमने इससे पहले पढ़ा, दैट वी कैन प्रोवाइड फॉर एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड लॉसेस बट नॉट फॉर द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स. यानी एक आने वाली जो हमें प्रॉफिट है या इनकम है उसको हम पहले ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट प्रोवाइड फॉर दैट. लेकिन एक आने वाले नुकसान को हम पहले ही मतलब कंसिडर कर सकते हैं. इसी तरह प्रूडेंस हमें यही भी कहता है कि जो हमने स्टॉक हमारे पास है, जो हमने अभी बेचा नहीं है, उस स्टॉक की जब वैल्यूएशन होगी, इसकी वैल्यूएशन उस पर नहीं होगी जिस पर हम इसको बेचेंगे, मार्केट वैल्यू जो इसका होगा, बल्कि उससे कम, बिकॉज वी एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द और फॉल इन द वैल्यू ऑफ द in the price of the goods. So we record it at the less cost than the market price. So the answer is prudence, that is convention of conservatism, that is the option C. Now the last question is, that is the concept that states the unit of measurement in accounting is stable over time is a key assumption of the. हमें बताना है कि अकाउंटिंग में वो कौन सा प्रिंसिपल जो हम यूज करते हैं जो हमें कहता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी, रिमेन स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Money is considered as a stable monetary unit. Which is the answer for of this question? That is monetary unit concept, historical cost concept, periodicity concept, or going concern concept. I think the answer is quite evident. You can easily choose your answer. That is the answer. That is the option A. That is says the monetary unit concept, or we call it stable monetary unit concept. Accounting में हम ये assume करते हैं कि that is the unit of measurement remains stable over a period of time. That is, there is no change in the currency value. Value of currency remains same over a period of time. There is no change in the value of currency. That is what is considered in accounting. And for that question, that is question number 15. That is option A is the right answer. That is monetary unit concept. So these were all about these questions related to the concepts and conventions of the accounting. Now we can also check the answers again from the answer key. You can also remember these answers, future references. These are answers for the questions we have already discussed. These all questions were related to the concepts and conventions of accounting, which is also known as GAAP,
दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एंड इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझने के लिए पहले आपको वो कंसेप्ट्स के लेक्चर्स, इन जो कंसेप्ट और कन्वेंशंस पे जो लेक्चर्स पहले ही मतलब अवेलेबल है, you must watch all those lectures and this will become very easy. So I hope you have understood. Thank you so much.